آنے والی نسل کے لیے اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی، اپنے آئین کا تحفظ، اپنی حقیقی آزادی، اپنی خودداری اور حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فسادیت، ایک جبر، ایک ظلم، جس کے اندر ہماری چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کیا گیا، ہمارے پہ جیلی پرچے کاٹے گئے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمارا لیڈر آج جیل میں ہے، ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجائز جیل میں ڈالا گیا، ہماری پارٹی کے لیڈران، ہمارے ورکران، ایون ہمارے ووٹرز تک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ ایسا ایک ظالمانہ ایک رواج اور ایک روایت ڈالی گئی جو کہ پاکستان نہیں، دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر بھی ہم پرامن ہو کر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی، جب بھی ہم پرامن پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی، اور جب ہم عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، اور نہ ہی اسمبلی کا وہ فلور، اس کا جو پارلیمان کا تقدس ہے، نہ ہی اس کا اس ملک پہ کوئی احترام رہ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ جلسے کی اجازت نہ ملے تو ہم جا کے کوئی پروٹیسٹ کر کے اپنا ایک بیانیہ دیں۔ اب بھائی یہ نہیں بیٹھیں گے، بھائی نہیں بیٹھیں گے، چھوڑ دو اس بات کو، اب نہیں بیٹھ رہے، وہ چھوڑ دو نا یار، آواز آ رہی ہے نا، نہیں بیٹھ رہے، تم کہہ رہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ رہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اسلام آباد میں ہمارے پہ فسادیت کی گئی، پھر ہم نے پرامن جو ایک کال دی، میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پرامن بارہا میں نے اپنی بات میں کہا، عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیں گے، اور پرامن طریقے سے ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ وہ ایریا جہاں پر اجازت نہیں ہے، جہاں پہ خان صاحب کا اشتہار ہے، یہ کال خان صاحب نے دی، اور خان صاحب نے اس اشتہار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے، اپنی ان ڈیمانڈوں کے ساتھ زندہ باد، زندہ میرے بھائیوں ایک منٹ اب میرے بھائیوں سوچو، یہ بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان کے اشتہار میں ہے، اور یہ دھرنا جاری ہے، اور ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سن لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنے کے اندر عوام ہو۔ انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو باقی زخمی ہیں ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے، اور شہداء کا بھی ابھی آ رہا ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکن، ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے۔ بات یہ ہے اگر ہم پرامن طریقے سے جا رہے تھے، پرامن بات کر رہے تھے، تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد، ایون کہ گولیاں کیوں برسائی گئی؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ میرا دوسرا کہ یہ ایک تحریک ہے، یہ دھرنا ایک تحریک ہے، یہ جاری ہے، ہر طرح سے جاری ہے۔ آپ لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پہ گرفتار کر کے نہیں چھوڑو گے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے، لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو اتنا چلاتے رہیں گے، اور خان صاحب کی کال تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔
वादे करता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं खुद भी एक वर्कर हूँ। मैंने जिंदगी में अगर कोई नारा मारा है तो बड़ा कम मारा होगा। पिछले कई दिनों से मैं एक नारा मार रहा हूँ, और वो नारा क्या है? पीटीआई वर्कर जिंदाबाद। आपने साबित किया है। हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद। मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों, हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कुर्बानियां देते रहेंगे। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता, तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। सबूत के साथ हमने सैकड़ों, 55 तो मैंने खुद अपने हाथ से, और कई हमारे वर्कर से मैं सलाम पेश करता हूँ वर्कर को, कि जब कोई पुलिस वाला, फोर्सेज वाला हाथ आया तो उनको बचाया, और बचा के छोड़ा और घर जाने दिया, क्योंकि हमें एहसास है कि अगर कोई गलत काम करवा रहा है उनसे, तो अपनी ड्यूटी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे खड़े हुए और पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे के घर में फौज का भी कोई बंदा है, अफसर है या जवान है, पुलिस का भी है, सरकारी भी है, ऐसी भी है, ऐसा ही है ना। ये हमारे भाई हैं, उनसे जो गलत काम करवा रहे हैं उन पे हमारा सवाल निशान जरूर है कि गलत काम क्यों कराया जा रहा है उनसे। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ, हम पुरअमन थे। हमें अगर ये कल वीडियो दिखाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुन लो, पूरे पाकिस्तानियों, आज तक हम ये कह रहे हैं, मैं सुबह का वजीर आला हूँ, 9 महीने से कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर 7 जिलों में 9 मई का पर्चा है। कोई मेरी फोटो, कोई वीडियो दिखा दो, नहीं है। 1 घंटे टाइम में, और ये पर्चा नहीं है कि मैंने कहा था, पर्चा ये है कि मैं खुद मौजूद था। अब आप बताओ, 1 घंटे में 8 जिलों में मैं कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो बताया कि मैं इस तरह घूम के आया, गाड़ी में जिलों से होता हुआ गया। उसमें तो ये मीडिया वाले और ये कुछ इनके जो टाटा करने वाले रखे हुए हैं, इन्होंने या रखी हुई है। आ जाओ सोशल मीडिया, आ जाओ सारे, सोशल मीडिया, आ जाओ सारे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस्लामाबाद से निकल के इस रास्ते पे जाओ, गोधार और शांगरा वाले से अपने सूबे में, तो पेशावर कौन सा जिला है? लेकिन इन अपने वज़ीर आला होकर मफरूर कर देते हैं, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक वज़ीर आला इस मुल्क में इंसाफ ना ले सके, तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात रहती है इस मुल्क में। इन फिरौनों की वजह से, जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के, हमने इनका मुकाबला करना है, हमने इनका मुकाबला करना है। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वर्कर्स को, मैं उनकी फैमिली को बता रहा हूँ कि हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ हर हद तक खड़े हैं। ये हमारे बच्चे हैं और जो गिरफ्तार हैं, गैर कानूनी तौर पे इंशाल्लाह इस तरह पहले रिहा करवाए हैं, इंशाल्लाह हम उनको रिहा भी करवाएंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बहादुरी से आप लोग गए और ताकत है इमरान खान की, आपने साबित किया है लाखों लोगों के साथ जाकर कि आप पीछे नहीं हटने वाले। अभी भी आप अगर पुरअमन थे और आपने देखा कि गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। आपकी अजमत को, आपके पाकिस्तानी होने को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो पैगाम देता हूँ इनको कि कौम के ऊपर गोलियां बरसा के कौम गुलाम नहीं बनाई जा सकती। हम आजाद हैं, हमारे वालिदैन ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। हम किसी को इस आजादी पे टाका नहीं मारने देंगे। उसके बाद मैं एक बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं वहां पर मौजूद हूँ
वर्कर्स मौजूद हैं और हमारे ऊपर मैं खुद गवाह हूं और इसकी एफआईआर मैं खुद करूंगा मुद्दई बन गया। इस एफआईआर का मुद्दई मैं खुद हूंगा। डायरेक्ट गोलियां मारी गई, जान से मारने के लिए गोलियां मारी गई। मेरे ऊपर झगड़ा हुआ, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे जो इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी वो मेरे साथ थी, उन पे भी हमला हुआ क्योंकि मेरे पे हुआ, सारी बात उन पे भी हुआ। मेरे साथ जो थी वो भी मेरे साथ जा रही थी, वो सारी बात है। वो हमले में वो भी थी। असैसिनेशन अटैम्प्ट, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए, 12 किए गए। और उसके बाद डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इकदाम किए गए वो भी सबके सामने आएंगे इंशाल्लाह, सबूतों के साथ आएंगे। और मैं पैगाम दे रहा हूं इस हुकूमत को कि होश में ना भूलो, तुम लोग मिलकर जो हरकतें कर रहे हो, एक दफा पहले भी तुम्हारी गलतियों से पाकिस्तान टूट गया, आज फिर तुम ये कर रहे हो। ये सूबा अपना मैंडेट लेना भी जानता है, ये सूबा अपना हक भी लेना जानता है और ये सूबा इंशाअल्लाह अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी जानता है। हमने ज़र्फ़ का सबूत दिया है, हमारी तालीम और तरबियत ऐसी है कि हम वो गलत और घटिया इक़दाम नहीं करते। लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो, तुम मजबूर कर रहे हो कि हम अगर तुम्हारे वाला वतीरा इख्तियार कर लिया तो खुदा की कसम तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे, तुम्हें उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर को गिरफ्तार करो सबसे पहले। वादे करता हूँ, वो बेचारा वैसे बड़ी तकलीफ में है यार, वो जिस घर से वो गुजर रहा है उसे तो सजाए बहुत ही बेहतर है खुदाई के लिए। जिस घर में वो है बेचारा। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ इंशाअल्लाह, मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि मेरे ऊपर जो डायरेक्ट हमला हुआ है, डायरेक्ट अगवा की कोशिश हुई है, डायरेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, वो डायरेक्ट मुझे वहां से अपने फेडरल से अपने सूबे में आने के लिए जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया गया है, तुम सब जवाब दोगे। उमर अयूब साहब भी मेरे साथ थे, उमर अयूब साहब मेरे साथ थे, उनके साथ भी यही हुआ क्योंकि वही मौजूद थे। जब गोली निकलती है वो देखती नहीं है कि वो लग किसको रही है, क्योंकि बंदूक का एक मुंह होता है और गोली का एक होल होता है। वो निकल के जब गुजरता है तो कहीं से गुजरता है और जब लगता है तो फिर किसी को भी लग सकता है। उनकी गाड़ियां रास्ते में बंदों समेत अगवा कर ली गई। ये रवैया इख्तियार कर करके बार बार आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके साथ फिर निपटे। होश के नाखून लो, मुल्क की सोचो। मुल्क को आज डुबो दिया है, इकोनॉमी डूब चुकी है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, अवाम के मसाइल है, अमन अमान का बुरा हाल है, और आप लोग बैठे हुए हो सारे के सारे इदारे तहरीक इंसाफ खत्म करने के लिए। तहरीक इंसाफ एक सोच है, सोचें खत्म नहीं होती, नजरिए खत्म नहीं होते। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, या फिर समझ नहीं आएगी तो तुम अगर ये बदमाशी करते हो, अगर तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो, हमें समझाना भी आता है। आखिर में मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि जितने भी हमारे वर्कर शहीद हुए हैं या अल्लाह उनको सेहत दे, जख्मी हैं, और अगर वो भी शहीद हो गए तो उनकी फैमिली के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। उन सब के इलाज की पूरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा। और साथ साथ इसके अलावा जितने भी हमारे गिरफ्तार हैं, पहले भी इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ हम सबने मिलकर रिहा कराया है, इंशाल्लाह आप भी कराएंगे। पीटीआई वर्कर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबका बहुत शुक्रिया। मैं